हाय हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। माय सेल्फ प्रशांत गुप्ता, वेलकमिंग यू ऑल टू दिस सेशन। आज के सेशन बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 8th के जो आपके साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन एनएसओ के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इस पेपर के बारे में कि पेपर आपका कैसा होने वाला है, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए व्हाइल फिलिंग अप दी क्वेश्चंस। ओके, देयर आर सम गाइडलाइंस फॉर द कैंडिडेट्स। सबसे पहले यू विल हैव एडिशनल 10 minutes टू फिल अप the information about yourself on the OMR sheet. Okay, you have to bubble up the OMR sheet for the information such as your name, school code, class, roll number, mobile number. You have to fill these things on the OMR sheet clearly, and do not forget to sign the OMR sheet as well. Okay, you will share your marks and result on the other information related to the SOF exam on your mobile number. Okay, if we talk about the exams, you'll have basically 10 questions of logical reasoning, 35 questions of science, and 5 questions will be achiever sections. Okay, what is achiever section? We'll basically understand. Each question in achiever section carries 3 marks, whereas all the other questions carries only 1 mark. So these 35 questions and 10, these 45 questions will carry 1 mark each. So that is made up as 45 marks. And this 5 question will have 3 marks each, so that carries your 15 marks. So in total you have 60 marks exam. Okay, so 15 marks is of this achiever section only. You can see that this is about your 25% of the paper is from achiever section. So this is very important to try to do achiever section, and all the questions are compulsory, as the normal question as well as the achiever section. All the questions are compulsory. There is no negative marking, and you cannot use calculators for short. Only one question is correct in each. Only one answer is correct in each of the questions, and you have to basically fill that mark. The correct option you have to fill using your pencils or black ball pen in the OMR sheet. There is an example for it. Let's suppose there is a question in the water cycle, condensation is the process of what? So we have 4 questions for it. Ice warming up and turning up into liquid, water vapor cooling down, turning into liquid, liquid cooling down and turning into ice, liquid warming up and turning into water vapor. We know that option B is correct, which is water vapor cooling down and turning into liquid. This is called condensation. So what will you do? You will basically, I know that option B is correct, so you have to fill up correct option. So option B is correct, so you have to, in this OMR sheet, you have to basically fill option B. Thus, you have to circle this option B, so that with your ball, black pen or the pencil that you have, and make sure the circle is neat and proper. You don't have any blank spaces in between, and you are not going out of the circle very much. Okay. उसके बाद now you will have, and the rough work should be done in the blank spaces provided in the booklet. Booklet में ही आपके पास rough work के लिए space होगा, extra आपको कुछ नहीं दिया ना. OMR sheet जो है आपको इन्विजिलेटर को वापस देनी है. पर्सनल इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको उसको साइन करना जो है वो मत भूलिएगा. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर 21-22 सेशन फॉर क्लास 8th. साइंस सेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. ठीक है, इन अ गिवन फिगर शोन द बलून फिल्ड अप विद वाटर. ये आपके पास बलून है, इसमें वाटर भरा हुआ है, हाफ वाटर है. आपको पूछा गया है नाउ आशीष इज अ शरारती लड़का. तो वो क्या चाहता है? ही वांट्स टू मेक अ होल इन दैट बलून सो दैट द वाटर कम्स आउट ऑफ विद मैक्सिमम प्रेशर. एट विच पॉइंट शुड ही मेक द होल? किस पॉइंट पर आपके पास मैक्सिमम प्रेशर होगा? एक छोटी सी बात हमको बचपन में पढ़ाई गई थी. लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई वाटर बॉडी है, तो जिस भी वाटर बॉडी में एरिया से फर्क नहीं पड़ता, जब भी आप वर्टिकल हाइट में जितना नीचे जाते हो उतना ही ज्यादा प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता था. अगर मैं PQRS को ध्यान से देखूं तो मुझे दिख रहा है जो S पॉइंट है वो सबसे ज्यादा लोअर पॉइंट है. तो इस पॉइंट पर अगर मैं पिन से होल करूंगा तो इस पॉइंट पर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा. तो भाई अगर आशीष को सबसे ज्यादा प्रेशर से पानी चाहिए तो उसे S पॉइंट पर जो है वो होल करना चाहिए. दैट इज अवर करेक्ट आंसर. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, अंडरस्टूड. नाउ ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन इज द मैच द कॉलम क्वेश्चन फ्रॉम फ्रिक्शन चैप्टर. आपसे बोला गया आपके पास 2 कॉलम है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड. नंबर 1, कॉलम 1 इज लिमिटिंग. What is limiting friction? Self-adjusting force, less than sliding, maximum value, or less than limiting friction. Number 2 is static friction. What is static friction? Self-adjusting force, less than the sliding friction, maximum value, or less than the limiting friction. Then you have dynamic, and then you have rolling friction. So you basically have to fill these 4 things. What are they? Okay.
फ्रिक्शन के बारे में अगर मैं थोड़ी सी अगर बात करूं तो फ्रिक्शन क्या होता था सर, स्टार्टिंग में क्या होता था, आपके पास एक आता था लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। लेट्स सपोज अपने पास एक फ्रिक्शन आता था स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते थे वैसे वैसे आपके पास फ्रिक्शन जो है वो बढ़ता रहता था। अगर लेट्स सपोज मेरे पास कोई बॉडी है और मैंने उस बॉडी पर कोई फोर्स F लगाया, ये नहीं आगे बढ़ा, 1 न्यूटन लगाया नहीं लगाया, 2 लगाया नहीं बढ़ा, 3 लगाया नहीं बढ़ा, 4 लगाया नहीं बढ़ा, 5 लगाया बढ़ गया, तो क्या उससे पहले ये क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि सर पीछे एक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, तभी ये आगे नहीं बढ़ पाया। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कैसा फ्रिक्शन है सर? ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। कब तक बढ़ती रहती है? जब तक कि वो कहां ना पहुंच जाए, एक लिमिटिंग वैल्यू तक ना पहुंच जाए। लिमिटिंग वैल्यू के आने के बाद उसके बाद ये वैल्यू कम हो जाती है और बन जाती है काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन। ये आपका डायनेमिक फ्रिक्शन है, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ओके, तो अगर मैं बात करूं लिमिटिंग फ्रिक्शन की तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूं तो सर इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्यों? वो खुद को एडजस्ट करता है ऐसे कि जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स है बस उसको अपोज करना है सो दैट बॉडी चल ना पाए, बस उतना ही करना है जो बॉडी ना चल पाए, ना ज्यादा ना कम। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डायनेमिक फ्रिक्शन की तो डायनेमिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। क्यों भाई? लिमिटिंग फ्रिक्शन ये था, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। और फाइनली द रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है इसकी वैल्यू लेस होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो ए जा रहा है थर्ड पर, तो अपने पास ये 2 ऑप्शन बचे। उसके बाद बी जा रहा है फर्स्ट पर, तो ऑब्वियसली ऑप्शन, उसके बाद ये 2 ऑप्शन, और सी जा रहा था आपके पास फोर्थ पर, है ना भाई। सी फोर्थ पर जा रहा था ना, तो जो ऑप्शन डी जो है दैट इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, ए गोज टू थर्ड, बी गोज टू फर्स्ट, यानी लिमिटिंग जो है वो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक है आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। जो डायनेमिक फ्रिक्शन है वो आपका लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, और जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बल्ब ऑफ मर्करी थर्मोमीटर इज प्लेस्ड फर्स्ट इन मेल्टिंग आइस एट अ स्टैंडर्ड प्रेशर, देन इन स्टीम एट स्टैंडर्ड प्रेशर, एट व्हाट and at last in liquid X. X liquid क्या? We don't know. The length of the mercury thread in the uniform tube above built in the 3 cases are 30 mm, 180 mm and 60 mm respectively. What is the temperature of X? मतलब when you have placed it in a melting ice, so the height was 30 mm. When you have placed it in a steam, the height was 180 millimeter. Now when you have placed it in liquid X, the height is 60 centimeter. You are asked what is the value of this liquid. Okay, how can we treat this thing? Basically as we know कि जो टेम्परेचर होता है, the height of the column जो होती है that is directly proportional to temperature. जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा आपकी जो है वो हाइट होगी। अगर आपने उसको करा है मेल्टिंग आइस में, उसके बाद आपने उसको करा है स्टीम में, ठीक है, तो स्टीम आपका लिमिटिंग केस होता है, मेल्टिंग आइस 0 डिग्री टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, वो भी आपका लिमिटिंग केस होता है। ये आपका होता है आइस पॉइंट, तो आइस पॉइंट पर 30 मिलीमीटर है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है आपके पास, जिसको हम बोलना चाहिए वेपराइजेशन पॉइंट, या उस पर है आपके पास 180 मिलीमीटर। आपसे बोला गया 60 मिलीमीटर पर कितने होना चाहिए। अगर मैं 30 और 180 माइनस करूं तो सर आता है 150 मिलीमीटर, यानी इन अ रेंज ऑफ 150 मिलीमीटर इट इज हैविंग अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो 30 टू 180 बेसिकली में 150 मिलीमीटर इज बेसिकली डिफरेंस 150 मिलीमीटर, यानी 30 प्लस 150 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? अ डिफरेंस ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे टेम्परेचर पूछा गया है कि 60 पर टेम्परेचर कितना होने वाला है। ओके, तो 60 पर जो टेम्परेचर वो होगा वो आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कैसे होगा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करूं, ओके, तो 150 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर इज बेसिकली प्रोपोर्शनल, तो वी कैन राइट दैट the temperature T minus T naught divided by T 100
minus T naught is basically equals to L minus L naught divided by L 100 minus L naught. So temperature at which the length is L, T naught मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T 100 मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो बेसिकली T माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू L. क्या लेंथ थी आपने बोला 60 मिलीमीटर है, तो 60 माइनस L नॉट, 0 पे कितनी थी 30 थी, तो 30 डिवाइडेड बाय L 100 माइनस L नॉट दैट इज 180 माइनस 30, तो दिस इज गोइंग टू बी 150. तो टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो टेम्परेचर विल बी इक्वल्स टू 60 माइनस 30, 30 डिवाइड बाय 150 यानी 1/5 एंड वी विल ट्रांसफर दिस थिंग हियर, सो विल हैव 100. So the answer turned out to be 20 degrees centigrade. So this is the answer A. Okay, this is the correct answer. The temperature will be 20 degrees centigrade. It's a simple relation that you have to remember, that T minus T naught divided by T 100 minus T naught. T naught is freezing temperature, it is T 100 is boiling temperature. So length of the thermometer at melting temperature, length at the boiling temperature and length at the melting temperature. So this is the relation between the length of the thermometer at boiling and freezing temperatures with corresponding to the length in the thermometer. Correct? Moving ahead. Next question. The focal length of a convex length is 10 centimeter. Okay. It produces an erect and enlarged image if the distance of the object of the lens is. Focal length of a convex lens is 10 centimeter. Okay, convex lens basically means this lens. The focal length is 10 centimeters. It has a focal length of 10 centimeters. It is producing an erect and enlarged image. हमको पता है convex lens से हमेशा ही आपकी inverted, real और diminished image बना करती थी. Enlarged image तभी possible थी जब आप हो फोकल लेंथ और पोल के बीच में. अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो अगर आप 5 सेंटीमीटर पर हो गए तभी ऐसा होना पॉसिबल है कि आपको इनलार्ज्ड इमेज बने. तो अगर आप यहां पर कभी होते हो तो आपको बेसिकली एक आपके पास जो रे होती है वो इस तरह से होती है जो यहां चली जाती है, दूसरी रे आपकी पोल से जाती है. तो ये जो इमेज बनती है ये आपको इनलार्ज्ड मिलती थी, इरेक्ट मिलती थी और इमेजिनरी मिलती थी. ये सेम कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो जितने भी आपके माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं उन सब में. तो वहां भी आपके पास आपको जो ऑब्जेक्ट रखना है वो आपको फोकस से आगे रखना होता है, फोकस और पोल के बीच में रखना होता है, तभी आपको इरेक्ट, इनलार्ज्ड और इमेजिनरी इमेजेस जो है वो मिलती थी. ओके, सो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मेरे पास एक सॉफ्ट आयरन नेल है एक्स एंड वाई. एक्स वाई मेरे पास एक सॉफ्ट आयरन नेल है, इसको प्लेस करा गया है करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर. मतलब क्या, एक लूप का मैंने बहुत सारे लूप्स अगर आपस में जोड़ दिए तो एक क्या सोलेनॉइड बन गया. फॉर अ वेरी शॉर्ट व्हाइल एज शोन इन द फिगर, व्हेन द नेल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सोलेनॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. यार अगर मैं किसी भी लूप के अंदर, यार कैसी सॉफ्ट आयरन नेल है यानी एक ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटाइज हो सकता है. यानी जब भी इस मटेरियल को मैं एक सोलेनॉइड के अंदर डालूंगा तो क्या सोलेनॉइड इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करता था, और मैग्नेटाइज किस डायरेक्शन में करता था? अपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. अब इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं देखूं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल है, यानी करंट की डायरेक्शन ये होने वाली है. अगर इस करंट की डायरेक्शन में अगर आप ये देखो तो ये जो करंट है ये अपवर्ड है, ये कॉइल कुछ इस तरह से मूव कर रही है और पीछे से आपका करंट यहाँ इस तरह से वापस आता है. तो लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास एक नेल है तो करंट कैसे मूव कर रहा है बच्चे? इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है. देखो ध्यान से, ये कॉइल है, ऊपर से करंट आ रहा है, यहां से करंट आया, पीछे गया, फिर आपको आगे से दिखा, फिर पीछे गया, फिर आगे से दिखा. तो इस तरह से करंट की डायरेक्शन है. अगर राइट हैंड थंब रूल से ये आपके करंट की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या इस तरफ हो जाएगी? ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी. यानी दिस विल बी ट्रीटेड एज नॉर्थ एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज साउथ. इस तरह से मैग्नेटाइज कर देगा ये सोलेनॉइड इस सॉफ्ट आयरन नेल को. इतनी बात समझ आ गई. अब जरा ऑप्शंस की बात करते हैं. एंड एक्स विल बी एबल टू रिपेल सिमिलर आयरन नेल व्हिच हैज बीन मैग्नेटाइज्ड सिमिलरली. सिमिलर आयरन नेल जो होगी व्हिच हैज बीन मैग्नेटाइज्ड, दिस एक्स विल बी एबल टू रिपेल. यार कैसे पता रिपेल करेगा? डिपेंड करना चाहिए कि उसका एक्स है या वाई है. अगर ये नेल इसी के सामने मैं एक और नेल ऐसे ही लेकर आऊं तो ये भी इसका नॉर्थ है, ये भी साउथ है, तो यार ये इसको रिपेल थोड़ी ना करेगा, ये तो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होते हैं ना बच्चे, नॉर्थ और साउथ क्या होते थे? अट्रैक्ट होते थे. तो सिमिलर नेल अगर आप सामने लेके आओगे तो क्या करेंगे? ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, रिपेल करने की कोशिश नहीं करेगा. ऑप्शन बी तो बच्चे गलत हो गया.
बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, द एंड एक्स विल बी अट्रैक्टेड टू द नॉर्थ सीकिंग पोल ऑफ अ बार मैग्नेट। अगर मेरे पास कोई भी बार मैग्नेट है तो उसमें दो पोल होते थे बच्चे, एक होता था नॉर्थ पोल, एक होता था साउथ पोल। नॉर्थ पोल होता था साउथ सीकिंग पोल और साउथ पोल होता था नॉर्थ सीकिंग पोल। साउथ पोल क्या चाहता है कि कोई भी नॉर्थ पोल की चीज मेरी तरफ आए, मुझे क्या मिले, नॉर्थ पोल को मैं अट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो साउथ पोल होता था नॉर्थ सीकिंग पोल, यानी अगर ये इस तरह से मैग्नेटाइज हुआ था, ये नॉर्थ पोल बन चुका है, तो अब अगर मैं इसको इसके पास लेके आऊंगा इस ओरिएंटेशन से, तो क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा? तो सर पक्की सी बात है, ऑप्शन नंबर जी जो बोल रहा है कि एंड एक्स विल बी अट्रैक्टेड टू द नॉर्थ सीकिंग पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। इन दिस क्वेश्चन वी आर आस्क्ड, एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो आपको दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से दिया गया है और उस ग्राफ पर आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, पी क्यू एंड आर। पी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्यू आपका ये वाला पॉइंट है और आपका ये वाला पॉइंट है आर। आपसे बोला गया है इन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ लिफ्ट क्लाइंबिंग फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू द बिल्डिंग गिवन हियर, which of the following statement is an R false about the graph। आपको बताना है false statement कौन से हैं। याद रखो क्या पूछा गया है, राइट बता के मत आ जाना, आपको false statement बताने हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, एट पॉइंट P द लिफ्ट इज स्टेशनरी। अगर पॉइंट P की मैं बात करूं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो ये टाइम यहां पर होगा, तो यहां पर एट पॉइंट P जो स्टार्टिंग पॉइंट है, लिफ्ट इज स्टेशनरी, क्योंकि लिफ्ट मूव नहीं कर रही। ये चीज हम कैसे निकालते थे सर, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता था वो हमें क्या बताता था, स्पीड बताता था। अगर पॉइंट P पर मैं देखूं तो ये स्लोप कुछ इस तरह का आएगा, टेंजेंट ऑन दैट लाइन, यानी कहना चाहिए तो ये डायरेक्शन जो आएगी वो स्लोप 0 को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब पॉइंट P पर आपकी लिफ्ट कैसी है, स्टेशनरी है। और हम ये बात जानते हैं क्योंकि ग्राउंड से स्टार्ट करा, डिस्प्लेसमेंट 0, तो भाई 0 यानी रेस्ट से तो स्टार्ट करा होगा, तो इस तरह से भी इस चीज को समझ सकते हैं। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, हमसे फॉल्स पूछा था, तो ये हमारे इस क्वेश्चन की कैटेगरी का करेक्ट आंसर नहीं है। स्टेटमेंट सही है पर हमसे तो फॉल्स पूछा है, इसलिए करेक्ट नहीं है उस वे में। चलिए सेकंड बोला है वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम पॉइंट Q टू R। अच्छा, अगर मैं Q से R की बात करूं, क्या अपने को थोड़ी सी बात समझ आ रही है? लेट्स सपोज अगर मैं पॉइंट P पर एक टेंजेंट बनाऊं तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा बच्चे, और Q से R के बीच में अगर मैं कोई टेंजेंट बनाऊं तो कुछ इस तरह से जाएगा। आप देख रहे हो पहले टेंजेंट यानी वेलोसिटी कुछ इस तरह से है, उसके बाद वेलोसिटी कुछ इस तरह से होती है, तो क्या वेलोसिटी का रेशियो द टेंजेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, या जिसे मुझे कहना चाहिए स्लोप जो है, क्या वो डिक्रीज हुआ? देखो पहले ये स्पीड और फिर ऐसे हो गई है, तो क्या स्लोप डिक्रीज हो रहा है? स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसका बेसिक सा मतलब क्या है, स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है दैट वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम पॉइंट Q टू R, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया, पर हमसे तो रॉन्ग पूछा था, तो ये भी हमारी कैटेगरी में लाई नहीं करेगा। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एट पॉइंट R द लिफ्ट इज एट 0 वेलोसिटी। अब दोबारा से पॉइंट R, अगर मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं, पॉइंट आर कर दोबारा से आप लोग देखो तो दोबारा से पॉइंट आर पर अगर मैं क्या बनाऊं, एक दोबारा से स्ट्रेट लाइन या फिर टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो इसका जो टेंजेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा बच्चे। मतलब इसका भी स्लोप क्या हुआ, 0 हुआ, जैसे पॉइंट P का हुआ था। तो यहां पर भी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो इनिशियल भी वेलोसिटी 0 थी, आर पे भी वेलोसिटी 0 थी, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो अभी तक A B C तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, करेक्ट है बिल्कुल। फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट इज मिनिमम एट Q। वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट इज मिनिमम एट Q, यानी आपको देखना पड़ेगा कि आपको स्लोप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का मिनिमम कहां पर है, वहीं आपकी वेलोसिटी मिनिमम होगी। तो अगर मैं यहां देखूं तो यहां पर पॉइंट P पर जो स्लोप है वो तो कुछ इस तरह से है, ये सर 0 के आसपास भी नहीं है। P और R पर आपकी वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, Q पर तो 0 मुझे नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, फोर्थ स्टेटमेंट जो है दैट द वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट इज मिनिमम एट Q, ये स्टेटमेंट आपका जो है वो गलत है। और ये स्टेटमेंट अगर गलत है तो इन 4 ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, फोर्थ ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली, फर्स्ट थर्ड फोर्थ ओनली में से ये स्टेटमेंट यानी रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, ओनली एंड ओनली फोर्थ ऑप्शन इज माय रॉन्ग स्टेटमेंट। तो बच्चों दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, दैट ओनली फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, चलो, टू प्लेन मिरर्स ए बी, दिस इज ए सी बी, AB and CD are placed at right angle to each other and a ray PQ hits AB
at Q making an angle 45 as shown in the figure, the ray will be reflected from the mirror CD. This is D and this is B. Okay, this is my AB mirror, this is my CD mirror, this is my PQ ray which is having an angle of 45 degree. Okay, now the ray will be reflected from the mirror CD at an angle of reflected. As we know, we will basically follow law of reflection. So since it is 45, we'll basically have a 90 degree. This is the perpendicular to this surface. So incidence angle is also 45. So the reflected angle will be also 45. Since these two are at 90 degrees to each other and this angle is 45, this angle is also 45, this angle is also 45. So correspondingly at this point, this is the perpendicular at this plane. So here the incidence angle in this plane is also 45. So this will also move this angle as 45 degree only. Okay, so what we have, that the angle of which the ray will be reflected from mirror CD at an angle of 45. Okay, as simple as that. You will come here according to this law of reflection, you will go at 45. This angle will be 45, and since this is 90, this is 45 and this is 45, this is also going to be 45 degree angle. So this angle is also 45, and since for this plane the incident angle is 45, so the reflected angle will also be 45. This angle of reflection, this is going to be a 45 degree angle. So the reflected ray from mirror CD will be at angle of 45 degree. Okay, let's see इस question में क्या हो रहा है. In this question, it is stated that two persons P and Q pushing each other as shown in this figure. I hope this figure is clear to all of you. There are two persons P and Q. They are pushing each other, but no one of the two is able to set the other in motion. If the masses of the guy is twice than the mass of the lady, who exerts more force? ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हो रहा है कि दो लोग हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं. जो फोर्स लगा रहे हैं उस वजह से कोई भी एक दूसरे को मोशन में नहीं दे पा रहा है, कोई भी एक दूसरे को मोशन में नहीं ला पा रहा है. इसका मास जो गाय जो है उसका मास डबल है टू द अदर पर्सन. ओके, द मास ऑफ द गाय इज ट्वाइस टू दैट मास ऑफ अ लेडी. देन बेसिकली हो क्या रहा है, अगर हमें इतनी सी चीज समझ आ रही है, अगर दोनों में से कोई भी मोशन में सेट नहीं हो पा रहा है, इसका बेसिक सा मतलब क्या है कि सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए. यानी जो फोर्स ये लेडी इस गाय पर लगा रही है और जो फोर्स ये गाय इस लेडी पर लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर लग जाएंगी तो सिस्टम नेट इक्विलिब्रियम में हो जाएगा और कोई भी मोशन नहीं होगा. इसका बेसिक सा मतलब क्या है कि क्या दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पर. जल्दी से बताओ, क्या बेसिक सी बात समझ आई? इक्वेशन से समझ आ रही है ना कि भाई इक्विलिब्रियम होना चाहिए था तभी तो मूव नहीं करेंगे, और मूव नहीं करने के लिए दोनों सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे होंगे तभी मूव नहीं कर रहे होंगे. सो वेरी सिंपल, ऑप्शन सी इज आवर आंसर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. In order to make both of the following metal spheres positively charged, what should be done? We have two metal spheres, one X and one Y, touching each other. Okay, these are touching each other initially, or initially they are also uncharged. Now we are asked हमको क्या करना चाहिए so that they both of them are positively charged and we have a negatively charged rod for the instant. What can we do to make these things positively charged? Option 1 is remove the rod after separating X and Y. Basically what we can do, basically they are connected towards each other, we just remove the rod after separating X and Y. X and Y we separate and then remove the rod. Second is remove the rod after earthing Y for a while, then separate the two spheres. Y को आप क्या करो, अर्थ करो, और अर्थ करने के बाद फिर आप Y को जो है वो सेपरेट कर दो. रिमूव द रॉड, ये रॉड को हटा दोगे तो X और Y दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे. थर्ड बोल रहे हैं अर्थ Y फॉर अ while and then remove the rod. थोड़ी देर अगर मतलब y को आप अर्थ करिए और उसके बाद इन दोनों को रिमूव कर दीजिए. फोर्थ है आफ्टर सेपरेटिंग x एंड y रिमूव द रॉड एंड देन अर्थ y फॉर अ while. मतलब इन दोनों को सेपरेट करो और उसके बाद थोड़ी देर रखने के बाद सिर्फ y को अर्थ करो. तो इससे क्या हो जाएगा, देखो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, आपने रिमूव करा रॉड को आफ्टर सेपरेटिंग x एंड y. x एंड y को आपने रिमूव करने के बाद रॉड को सेपरेट कर दिया तो यार इसके पास तो अभी भी न्यूट्रल ही रहे, चार्जेस तो कहीं का ही नहीं, तो ये तो गलत हो गई बात. सेकंड क्या बोल रहे हैं, रिमूव द रॉड आफ्टर अर्थिंग y फॉर अ while एंड देन सेपरेट द टू स्फीयर्स. अगर आप इसको अर्थ कर लेते हो, इसका बेसिक सा मतलब क्या होता है,
अर्थ करने का बेसिक सा मतलब क्या होता है कि आपने यहाँ नेगेटिवली चार्ज रॉड रखी है, तो उस नेगेटिवली चार्ज रॉड ने इसके पॉजिटिव चार्ज को रोक रखा होगा। जैसे ही आपने अर्थ करा, अर्थ क्या करता है, सारे चार्जेस को अपने अंदर संभाल लेता है जो भी फ्री होते हैं। तो जितने भी नेगेटिव चार्जेस को ये जो रिपेल कर रहा होगा, सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस के अर्थ में चले जाएंगे, इन दोनों पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो आपने रॉड को अर्थ करने से क्या करा, वाई को, क्योंकि आपस में कनेक्टेड थे, सिर्फ y को अर्थ करा तो x और y दोनों के नेगेटिव चार्जेस अर्थ में चले गए, और तब आपने सेपरेट करा दोनों को, तो क्या हुआ, इस पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस बचे, नेगेटिव चार्जेस नहीं बचे। एंड दैट्स हाउ यू बेसिकली मेक these two spheres positively charged. Okay, so option B is the correct way of doing it. Okay, correct. Number second question, next question from the light. Match column 1 with column 2, select the correct option. Column 1 we have 4 option, column 2 you have 4 option. Now you have to basically match. Convex lens, pinhole in the door, rear view mirror in the vehicle, magnifying glass और reflector of a torch. इसमें से क्या convex mirror होता है? ओके, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये आपको बेसिकली ऑप्शंस की बात करनी है सिर्फ। ओके, तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, क्या मुझे पता है मैग्नीफाइंग ग्लास मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो सर मैग्नीफाइंग ग्लास तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, तो ये तो ऑप्शन 3 से मिल रहा है, तो Q goes to 3। सिर्फ एक इसी को सॉल्व करो और मेरे पास आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर बाकी ऑप्शंस याद नहीं भी है तो भी काम चल गया, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कहाँ होता है सर, जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं वो आपके कॉन्वेक्स मिरर होता है। आपने देखा होगा उस पर लिखा होता ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर नॉट एज आर वेरी क्लोजर देन अपीयर, ऐसे लिखा होता है ना, तो वो कॉन्वेक्स मिरर के लिखा होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, एक छोटी इमेज बनाता था, है ना, और दूर इमेज बनाता था, एक्चुअल में पास की दूर इमेज बनाता था। तो ये आपको कॉन्वेक्स मिरर आपका रियर व्यू मिरर होता है। जो कॉनकेव लेंसेज होते हैं दे कैन बी ट्रीटेड एज पिन होल इन अ डोर, एंड जो कॉनकेव मिरर होता है दैट इज रिफ्लेक्टर ऑफ द टॉर्च, वो सारी की सारी जो लाइट को बाहर लेके जाता था। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड, ए मैन हु इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट एक्स बिटवीन टू पैरेलल वॉल्स force a pistol. He hears first 2 echoes after 0.5 seconds and 0.8 seconds respectively. A further echo is heard after firing at a time of. पहले आपने 0.5 सेकंड के बाद एक एको सुनी, फिर 0.8 के बाद एक एको सुनी। आपसे पूछ रहा है जो एक और फर्दर एको मिलेगी वो कब मिलेगी। एको का बेसिक सा मतलब क्या हुआ कि आपने जब फायर करा तो ये ट्रेवल यहां से यहां करेगा, आपका जो साउंड है, और फिर वापस आपके पास आएगा। सिमिलरली यहां से यहां ट्रेवल करेगा और फिर आपके पास आएगा। ठीक है, तो जब इस जो साउंड ने यहां से यहां ट्रेवल करा तो जो एको सुनाई दिया, क्योंकि ये छोटा डिस्टेंस है तो जल्दी आ गया होगा, तो 0.5 सेकंड का एको यहां से आया और 0.8 सेकंड का एको यहां से आया। क्लियर, डन। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस साउंड विल अगेन ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन एंड विल अगेन कम बैक। So what will happen if I talk about the speed of sound, 330 meters per second. Okay, you are taking 0.5 seconds in this journey. Let's suppose this is x1 and this is x2. So twice of x1 journey जो आप कर रहे हो, उस जर्नी को करने में जो आपको टाइम लगा 0.5 सेकेंड, स्पीड आपकी फिक्स है। ओके, तो ट्वाइस ऑफ x1 जर्नी को करने में लगा आपको 0.5 सेकेंड, ट्वाइस ऑफ x2 जर्नी को आपको करने में लगे 0.8 सेकेंड। अब क्या हो रहा है, आपको बोला है द फर्दर एको इज हर्ड आफ्टर फायरिंग एट अ टाइम ऑफ। अब कौन से टाइम पे दोबारा एको सुनाई देगा यार, ऑब्वियसली बात है 0.8 यहाँ पे, तो दोबारा से 0.3 0.5 अगर यहाँ ट्रेवल करूंगा, इसने क्या करा यहाँ से 0.8 ट्रेवल करा, क्या ये वाली जो एको थी ये दोबारा से यहाँ आकर यहाँ जाएगी तो 0.5 फिर से ट्रेवल करेगी, तो 0.8 में 0.5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 1.3 सेकेंड्स। तो 1.3 सेकेंड्स बाद का फिर से एको सुनाई देगी, तो 1.3 सेकेंड्स इज योर करेक्ट आंसर। यहां से पिस्टल से साउंड गया वापस आया इस जर्नी में 0.8 सेकेंड, यहां से यहां गया वापस आया 0.5 सेकेंड्स। अब क्या हुआ, ये साउंड यहां से वापस जाके यहां आएगा, एको देगा। ये वाला साउंड क्या होगा, यहां से यहां जाके वापस आएगा, एको देगा। इसमें 0.8 लगेगा, इसमें 0.5 लगेगा। क्या दोनों ही साउंड जब वापस आएंगे एक्स लोकेशन पे तो टाइम जो उनको लगेगा वो क्या लगेगा 0.5 प्लस 0.8, तो 1.3 सेकेंड्स बाद आपको एको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, read the following passage and select the option which correctly fills the blanks. Okay, number 1 क्या, we see pole stars stationary in the sky while the other stars appears to move in a group form. Number 1 में you have west east,
सेकंड में आपके पास मतलब बेसिकली आप कह ऑल द स्टार्स आर मूविंग फ्रॉम विच डायरेक्शन टू विच डायरेक्शन. पोल स्टार्स situated on the axis of earth directly above earth's which pole, north south, you have three options. And pole stars is not visible from which point, so northern southern hemisphere आपके पास चार ऑप्शन. As we know that the pole stars are basically towards the pole stars, which we say they are stationary and they point towards the north pole. Okay, so we have two options. Directly above Earth's which pole? North pole. So these two options can be correct. And we know that the southern people cannot see the pole stars. So southern people which are those are residing in the southern hemisphere cannot see pole star, because let's suppose this is our Earth and this is directly above pole star. This is our north pole, this is our south, this is northern hemisphere, this is southern hemisphere. So people who are residing in the northern hemisphere cannot see this pole star which is directly above the north pole. So all the other groups are traveling from east to west. Correct? So option B is our correct answer. If we know all these things, so we can simply deduce our answer like that. Moving ahead is a question from the light chapter. An object is placed before a system of two mirrors inclined at an angle of 120 degree. Find the number of images formed by the system. It's a very straightforward question. If I'm having a one mirror, so the number of images is basically one. This is an object and this is the image. If I'm having two mirror at an angle of some angle and the object is equally spaced, in that case there is a famous formula for that basically it is equals to 160 by n minus 1. This is going to be the number of images. 160 by theta minus 1 is going to be a number of images. Theta is the angle between the two mirrors. Here we have angle as 120. So 360 divided by 120 minus 1. 360 divided by 120 is basically 4. 4 minus 1 is basically 3. So we'll have basically 3 images. And those images will be something like that. This is your object. So you will have one image here, one image here, and one image here. Okay. This is the formula for this thing. 360 divided by theta minus 1. This is the number of images if an object is equispaced between two mirrors. Okay, at an angle theta. Moving ahead. This question is from motion chapter. Read the given statement and state the correct option. Statement 1 states the speedometer of an automobile measures the average speed of the automobile. The average speed is equals to the total displacement divided by total time. If we talk about the speedometer that you have in your bike or in your car, जिसमें भी आपका speedometer होता है वो क्या है? Let's suppose मैं 60 की स्पीड से चल रहा हूँ तो भी 60 दिखा रहा है, ब्रेक लगाए तो 0 दिखा देगा, फिर स्पीड बढ़ाऊंगा 40 50 60 80 90 100 120. तो क्या कर रहा है इसी इंस्टेंट पर जो मैं कर रहा हूं, क्या वो उसी इंस्टेंट की स्पीड दिखाता है? तो यार वो एवरेज तो नहीं दिखाता, वो बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो ये स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग हो गया. स्टेटमेंट 2 क्या? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन. ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है. तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ओके ओके. इन सम ऑफ द कार्स वी हैव स्पीडोमीटर जो एवरेज स्पीड बताता है, बट जो वो बता रहा है स्पीडोमीटर वो एवरेज इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उस पॉइंट पर आप बात कर रहे हो. ठीक है. स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू. द स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल. स्पीडोमीटर बेसिकली ये ऑप्शंस में कुछ दिक्कत है. स्पीडोमीटर बेसिकली हमको पता है कि स्पीडोमीटर गिव अस द इंस्टेंटेनियस वैल्यू नॉट द एवरेज वैल्यू. बट इन सम कार्स, अगर आप कार की बात करो तो कुछ कार में साइड से एवरेज भी लिखा आता है. ठीक है. That may be that thing, but in this case this statement 1 is obviously wrong. Options are different, we can basically figure out there are some issue in the options, but statement 1 is correct. The speedometer of automobile measures the instantaneous but not the average speed of the automobile. That is for sure. And average velocity is equals to the total displacement upon total time taken. That statement is also true. So 1 is true, second is wrong. That is the correct answer. 1 is true, 1 is wrong, and second is true. That is the correct statement. And obviously second, the statement 2 is not the correct explanation of first. Okay. Moving ahead, let's go towards the achievers section. This is the final question that is of 3 marks. Unidentified flying object UFO lands on a planet at a point 5 kilometers from an active volcano. Just after the landing, a volcanic eruption occurs. The time interval between the flash of light from the volcanic eruption
and the sound eruption was registered as 100 second. Okay, the time period of the sound wave produced is 2 seconds. Okay, the speed of the sound on that planet is asked. Again, you will see the time interval between the flash of light and volcanic eruption. You will see a light and you will see the you will basically hear the sound of the eruption, जिसके बीच में जो डिफरेंस है that is 100 seconds. Okay, अब फिर आपसे पूछा गया है the speed of sound produced is the time period of the sound produced is 2 seconds. आपसे पूछा गया what is the speed of sound at that planet. So let's suppose this is my volcano. This is at a distance of 5 kilometers. Okay, so at 5 kilometer I have a unidentified flying object at 5 kilometers. Okay, as we know the speed of light is 3 into 10 to the power 8 kilometers per second, and the difference between the eruption and the sound of eruption is 100 seconds. Okay, so we can say that the 5 kilometer will be traveled in the very fast time, and the speed of sound at that planet is very low. Okay, the time period of the sound of the is 2 seconds. As we know, if we talk about any sound, we can say for any sound wave, we can say the velocity is basically lambda by t. This is the wavelength divided by time length. So we can also say this is the wavelength times frequency. We know the time period of the sound produced and the wavelength of the sound. Okay, the speed of the sound on that planet is 330. So the difference we can say it's only due to the difference that is happening in that thing, because it is as 5 kilometer. So since the speed of sound is 3 into 10 to the power 8 meters per second, so it will require a very less amount than a second to basically come close to that 5 kilometer path. So basically point. So the difference is only due to the sound of this thing, sound of the wave. So the 5 kilometer distance is being traveled in 100 seconds. That is the whole point, that you have traveled 5 kilometer in 100 seconds. So the speed is basically distance upon time. The distance you have traveled is 5 kilometer, that is 10 to the power 3 meters, and the time you required is 100 seconds. So we'll have 50 meter per second as the speed of sound at that planet. That is the clear explanation of the point. All this information about this 2 seconds produced, that is basically useless. We just need it because if this was very precise value, let's suppose 100.002, then we could have basically used that the speed the light is traveling at that distance. So difference between the time traveled by the light and the time traveled by the sound, then we will talk about the difference. But since it is only 5 kilometers, तो लाइट एकदम से कर लेगा. लेट्स सपोज 10 टू पावर 3 या 10 टू पावर 4 -3 में उसको टाइम लगेगा 5 किलोमीटर रीच करने के लिए, जबकि आपके साउंड को 100 सेकंड्स में लग रहा है. तो आप उसको निगलेक्ट कर सकते हो. हम सिर्फ बात करेंगे कि साउंड कहां से आया भाई, 5 किलोमीटर दूर से आया, कितना टाइम लगा भाई, 100 सेकंड लगा. तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5 किलोमीटर डिवाइड बाय 100 हमने करा, तो 50 मीटर पर सेकंड इज द मीटर पर सेकंड. ये सेकंड भी आना चाहिए यहां पर, यूनिट गलत हो जाएगी नहीं तो स्पीड की भाई. तो 50 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरिड बाय वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसमें से क्या होता है जो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी करते हो एक वेव में. क्या मैटर ट्रेवल होता है, क्या मैटर एंड एनर्जी ट्रेवल होती है, क्या वेवलेंथ ट्रेवल होती है, या एनर्जी ट्रेवल होती है. क्या हमको एक चीज बहुत प्यार से बताई गई थी बहुत बचपन में, क्या कि साउंड वेव ट्रेवल्स द एनर्जी, मैटर ट्रेवल नहीं होता है. लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं कि मेरे पास इस तरह से कोई वेव है, ठीक है, तो वेव अगर मेरे पास इस तरह से आगे जा रही है तो क्या होता है सर, ये जो पार्टिकल होता है ये पार्टिकल तो ऊपर नीचे यही ट्रेवल करता रहता है. ये तो इसी जगह पर ऐसे ही ट्रेवल करता रहेगा. चीजें क्या आगे बढ़ती है, एनर्जी ट्रेवल करती है. मैटर कभी भी ट्रेवल नहीं करता, वो वहीं रहता है. एनर्जी ट्रेवल करती है ऑब्वियसली. तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है. ओके, एनर्जी ट्रेवल्स. ओके,
ये और इससे जुड़े जो भी आपके ओलंपियाड के क्वेश्चन है, जो PYQs है, ये सब आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट दैट इज student.myclassroom.digital पर। आप जाकर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो टैबलेट ऐप है उसको भी इंस्टॉल करके वहाँ पर आप जो वीडियोस इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो सब आप देख सकते हैं। अगर आपको इस सेशन से कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप at myclassroom.digital. I hope you like this session. I hope this session provides valuable information for your preparation. And on this note, thank you so much everyone for your time and patience. This is Prashant Gupta signing off. Bye bye. Take care.